or process proceed in direction required to go towards the equilibrium. For this reaction, the mass action ratio is given by B over A. इसमें ये हमारी कैलकुलेशन जो है ना, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने सिर्फ ये देखा एनर्जी को इस्तेमाल करती है. दिमाग mass action ratio at equilibrium is the equilibrium constant for the reaction. Equilibrium constant is B over A, where A is the reactant and B is the. दोबारा देख लें. Our reactions or processes proceed in the direction required to go towards equilibrium. For this reaction, the mass action ratio is given by the B over A. B क्या है? It is a product and A it is a reactant. अब इसको हम you can write it delta G is equal to delta G naught over RT. Delta G naught, it is the standard free energy change. R, it is a gas constant which is 1.987 calories per mole, and T is the absolute temperature, Kelvin में हुआ Celsius. A and B, actual concentration of the reactant and product. Ln, it represents the natural logarithm. अब delta G, it is equal to delta G naught over RT, Ln and B over A. At equilibrium, delta G is equal to 0. अब इसको कैलकुलेट करके दे. At equilibrium, delta G is 0. If it is on 0, then delta G naught 0 is equal to delta G naught plus RT Ln B over A. अब इसको हम अगर G डेल्टा G नॉट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? ये जो RT प्लस है इट विल बिकम माइनस. तो इट मीन डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू दी माइनस RT natural logarithm of B over A. Then the exergonic reaction and endergonic reaction. Exergonic में gives free energy, there's the release of the energy, or reaction starts spontaneously because it is more than, it is less than 0. Or endergonic energy, it is more than 0 and reaction is not spontaneous. Kinetic energy is required for this. You have to exergonic में energy release होनी है, इसलिए there is no need of energy. But दूसरी तरफ it is the endergonic reactions, it means that energy is added. यहाँ पे एनर्जी एक्सर्गोनिक में एनर्जी रिलीज होनी है, एंडरगोनिक में एनर्जी ऐड होनी है. इट मीन दैट फॉर दिस हमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड एनर्जी. Negative delta G. If delta G is negative, there is a net loss of energy. The reaction is said to be exergonic. The reaction goes spontaneously, and positive delta G,
There is a net gain of energy. Reaction does not go spontaneously. Energy must be added to the system to make reaction. The reaction is said to be endergonic. अब दो किस्म के रिएक्शन बॉडी में हो रहे हैं. एक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी बन रही है, एक एनर्जी है जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है. एनर्जी जहां बन रही है वो दैट इज दी एंडरगोनिक, और जो जहां रिलीज हो रही है दैट इज दी एक्सरगोनिक. Delta G is zero. When a reaction is proceeding spontaneously, free energy is being lost. Reaction continues and the free energy reaches zero and equilibrium is established. Now, cells use energy for chemical work, for mechanical work, and for electrochemical work. अब सेल्स जो एनर्जी यूज कर रहे हैं इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंसेस हो रही है, इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट्स हैं, आयनिक कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स हो रही है. तो दिस ऑल working, this all working depends upon the energy, and cells use these energy for chemical work, for mechanical work, and for electrochemical work. What can cell do with the energy? Cell, in some cells, as much as half of the cell's energy output is used to transfer molecules across the cell membrane, a process called the active transport. जो एनर्जी हम इस्तेमाल करते हैं उसमें से हाफ जो है ना वो इट इज बीइंग यूज्ड इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट द सेल इनटू. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्स वी आर टेकिंग, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट, हमने ग्लूकोज लिया है, तो जब तक ग्लूकोज ट्रांसफर सेल के अंदर नहीं होगा, इट इज नॉट बीइंग ट्रांसपोर्टेड इनटू द सेल, हाउ इट कैन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. And if there is not the process of the glycolysis, there will not be generation of the energy. तो उसमें ये सबसे पहले transport of the substances across the cell. Then next, the cell movements require every second, every day. अब हमारे बहुत से chemical reaction, 1000 के हिसाब से chemical reaction, in a chemical bond energy, the shared electron that holds the atoms together in the molecules. Endergonic and exergonic reactions. Endergonic reactions कौन से हैं और exergonic reactions कौन से हैं? Number 1, endergonic reactions. कौन से होंगे endergonic? Which require energy. Chemical reaction that requires a net input of energy. Chemical reaction that requires a net input of energy. वो एंडरगोनिक, जो एनर्जी जिनको चाहिए. इसकी एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल क्या है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं. अब इसी में आप देखें कि कौन सा एंडरगोनिक है और कौन सा एक्सरगोनिक है. फोटोसिंथेसिस, अब कार्बन डाइऑक्साइड which we are exhaling, it reacts with the water in the sunlight, photons. अब लाइट एनर्जी है that is being used here, and now it is converted into the glucose. अब देखें 6 molecules of carbohydrates, they were combined with the 6 molecules of water. एनर्जी कहाँ से ली? फ्रॉम द सन. अब यहाँ पे हमारे पास कितने एटम आ गए? 6. आप देखें कार्बन एटम्स हैं, वहां पे दे फॉर्म द ग्लूकोज, इन्होंने ग्लूकोज बनाना है, तो ये 6 कार्बन एटम्स विल you can see in the glucose, and then H12. यहाँ पे कितने H हाइड्रोजन एटम्स हैं? 12.
6 वाटर है, उसमें से 12 हाइड्रोजन है, ठीक हो गए। उसके बाद है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 18, ठीक है जी। 18 में से 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हो गए और ऑक्सीजन के बन गए, और बाकी 6 जो ऑक्सीजन एटम्स थे वो ग्लूकोज में चले गए। तो इन दिस वे अब इसमें एनर्जी कंज्यूम हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन एंड ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन, ये एक सर्कल चलेगा, ऑक्सीजन फिर दोबारा इनहेल करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे। नेक्स्ट दी एक्सर्गोनिक रिएक्शंस। अब एक्सर्गोनिक रिएक्शंस क्या होगा? केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस एनर्जी। वो कौन से थे? एंडरगोनिक केमिकल रिएक्शन दैट नीड एनर्जी, दे आर सिंथेसाइजिंग एनर्जी, केमिकल। और ये दे आर रिलीजिंग एनर्जी, एक्सर्गोनिक। इसमें एग्जांपल सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम पढ़ेंगे इसके बाद, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इट इज द सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है कि यही ग्लूकोज जो हमने प्लांट्स ने सिंथेसाइज किया, वी टुक इट इन द डाइट, नो वी आर inhaling the oxygen, this glucose is being combined with the oxygen, or again these are producing the 6 molecules of the carbon dioxide and 6 molecules of the water. और ये कार्बन डाइऑक्साइड विल बी पिक्ड अप बाय द प्लांट्स, और वो एक सर्कल चलेगा। अब इसमें साथ इसने क्या किया है, इट इज रिलीजिंग द एटीपी मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, उसके साथ एटीपी मॉलिक्यूल इसने रिलीज किया। ग्लूकोज in cellular respiration, the electron chain respiration combined with the oxygen. अब ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज हो गई ना, ग्लाइकोलिसिस। अब इसमें बेटे 2 तरह के ग्लाइकोलिसिस आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, हमने पढ़ा था जब हमने सेल पढ़ा था, तो इट इज इन दी माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल भी हैं लैकिंग माइटोकॉन्ड्रिया। बाज़ का ये होता है कि कुछ ऐसे सेल हैं जहाँ पे सप्लाई ऑफ दी ऑक्सीजन इज डेफिशिएंट। हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जहाँ ऑक्सीजन बहुत कम मिकदार में पहुंचती है, उसमें कॉर्नियल सेल्स, आप कॉर्नियल सेल्स हैं। तो वहां पे क्या होगा? वहां पे भी दैट दैट सेल, दो सेल्स आल्सो नीड एनर्जी टू सर्वाइव। तो या वहां पे फिर विदाउट ऑक्सीजन देयर विल बी एटीपी प्रोडक्शन विदाउट ऑक्सीजन। इसको हम कहेंगे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। अब एरोबिक ग्लाइकोलिसिस किसने दिया है? एनारोबिक किसने नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि एनारोबिक में यहाँ पे ये एक्सर्गोनिक है, एनर्जी इज बीइंग सिंथेसाइज्ड, एनर्जी बन रही है लेकिन रिलीज हो रही है। लेकिन वहां पे एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस में भी देयर इज ए रिलीज ऑफ एनर्जी, बट फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट एटीपी मॉलिक्यूल्स। आपको 2 एटीपी मॉलिक्यूल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, फिर आपको यू विल गेट 4 एटीपी मॉलिक्यूल। यहाँ पे आपको एटीपी कोई भी आपको इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आपके पास ग्लूकोज था और फिर ऑक्सीजन थी, ये ट्रांसपोर्ट चेन में गई, कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर एंड अगेन बाय फॉर्मिंग द एटीपी। What is the cellular metabolism? Cellular metabolism. There are thousands of different chemical reactions in the cell, and these referred to as the term metabolism. Cells use thousands
different chemical reaction, which is called the metabolism. A metabolism, cellular metabolism. In general, metabolism can be split into two groups reaction. दो किस्म के हैं, एक कैटाबोलिज्म होगा और एक एनाबोलिज्म होगा. एक में ब्रेक डाउन होगी और एक में फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स. एक में ब्रेक डाउन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स होगी, वीयर एंड टीयर, और दूसरे में फॉर्मेशन ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल. कैटाबोलिज्म breaks down molecules releasing energy. Some of the energy is captured in the bonds of ATP. कैटाबोलिज्म में क्या होगा कि देयर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द मॉलिक्यूल, जिस तरह के ग्लाइकोलाइसिस है एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. नहीं बस नहीं हो ज्यादा. Catabolism which breaks down molecules, releasing energy. Some of the energy is captured in the bonds of ATP. Anabolism, which use energy from ATP to synthesize large molecules, including the macromolecules. Some of the exergonic reactions and some of the endergonic reactions. Anabolic pathway. Metabolic reactions which consume energy. Endergonic. जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें एनर्जी यूज होती है, इस्तेमाल होती है, दैट इज द एंडरगोनिक, टू बिल्ड द कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स दैट फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल. जिस तरह के हम डाइट लेते हैं, दैट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द कैटाबॉलिक प्रोसेस. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इन द मोनोमर्स, मोनोसैकेराइड, दैट विल अगेन अब्सॉर्ब बाय द जीएटी, और उसके बाद ये एनाबॉलिक पाथवे हमारा बनेगा, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे. इसी तरह प्रोटीन है, दैट विल बी द मोनोमर्स, उसके बाद अमाइनो एसिड होंगे. अमाइनो एसिड विल अगेन कम इनटू दीस प्रोसेसेस टू फॉर्म द मैक्रोमोलिक्यूल. एग्जांपल सेम मेटाबॉलिक में फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड which we are exhaling, picked up by the plants, combined with the water, and there's the formation of the glucose plus release of the oxygen, and then catabolic pathway. Metabolic reactions which release energy exergonic by breaking down complex molecules in simpler compound. Catabolic pathway. These are metabolic reactions which release energy exergonic by breaking down complex molecule in simpler compounds. Example, cellular respiration, electron transport chain. Glucose C6 H12 O6 which combined with the oxygen, and there is a release of the carbon dioxide and water with the production of the ATP. This is the catabolic pathway. What is ATP? ATP है क्या? A for basically it is universal energy carrier. Most of the cell process use the same energy source. The rechargeable energy carrier, बैटरी है, rechargeable है, एनर्जी यूज हो जाती है. there is a breakdown of the phosphate bond, ATP triphosphate, 3 phosphate will become to the diphosphate, 2 phosphate बन जाएंगे ADP, और फिर ADP then again it will recharge and becomes the ATP. So it is the rechargeable energy carrier. A for adenosine, T for tryptine 3 phosphate groups. ATP, adenosine triphosphate.
ATP compounds. Adenine, it consists of the adenine nitrogenous base है. सेकंड क्या होगा? राइबोज 5 कार्बन शुगर. थर्ड क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप. देयर इज अ चेन ऑफ 3 फॉस्फेट. अब देखें, adenine, it is a nitrogenous base. It is combined with the ribose 5 carbon sugar, and then there is the attachment of the 3 phosphate groups. This is the ATP molecule. Adenine, nitrogenous base, ribose, 5 carbon sugar, and the phosphate chain of 3 phosphate groups. Now, how ATP works? ATP काम कैसे करती है? The phosphate groups are held to each other by very high energy chemical reaction, chemical bonds. Phosphate groups जो है ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और these are the energy carrying. जब they did the breakdown of these phosphate groups, they the release of the energy. The phosphate groups are held to each other by very high energy chemical bonds. Under certain conditions, the end phosphate can break away and the energy released to the energy hungry reaction that keep the cell alive. जिस तरह हमने कहा कि कुछ फिर ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसमें तो हम आगे पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल हम ग्लाइकोलाइसिस हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, तो उसमें देयर रिएक्शन इन विच देयर द रिलीज ऑफ द एनर्जी. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी 3 जो फॉस्फेट ग्रुप्स हैं वो 2 में कन्वर्ट हो जाएंगे. When the end phosphate is released, क्या होगा? There is डाइफॉस्फेट. पहले ट्राई था, 3 थे, डाई 2 फॉस्फेट ग्रुप रहे, एडिनो डाइफॉस्फेट. This chain from tri to di is taking place constantly as ATP circulate through cell. जब एनर्जी यूज होती है तो ये जो ATP है विच इज ए एनर्जी कैरियर, यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप टूटता है और ATP में होता है और फिर वो एनर्जी इज बीइंग यूज और वो ADP इज अगेन रिचार्ज. रिचार्जिंग कहाँ से होती है? जो हम खाना खाते हैं. The recharging of ATP to ADP requires a huge energy investment, and that energy comes from the food we eat. Hydrolysis of ATP. ATP hydrolysis reaction, that reaction in the combination with the water molecule. क्या होगा? There is the ATP degradation, P अलग हो गया, phosphate group अलग हो गया, and exergonic and energy is released, which is being used. Adenosine triphosphate, hydrolysis, water is added. हम फूड खाते हैं ना, तो वाटर जब ऐड होता है उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो ATP is being broken down to the ADP, adenosine diphosphate. Then the dehydration of ATP. वाटर पहले हमने ऐड किया, उसके बाद वाटर इसमें से जब निकालेंगे, डिहाइड्रेट करेंगे, अगेन फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड एंड ATP प्लस वाटर. अब जहाँ पे एंडरगोनिक है, एनर्जी हमें यूज करनी पड़ेगी क्योंकि वो एनर्जी जो हम फूड की शक्ल में लिए, दैट इज बीइंग एडेड टू दिस ADP एंड phosphate group will be added in the form of the ATP. Adenosine triphosphate, dehydration synthesis remove the water, adenosine diphosphate. Cells get most of their energy by oxidizing carbohydrates, lipids and proteins. जो एनर्जी है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी, हमारी जो जनरल डाइट है
डिपेंड्स अपॉन द कार्बोहाइड्रेट्स हैं, हम लिपिड्स लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, तो जितनी भी एनर्जी है दीज आर बीइंग जनरेटेड बाय द ऑक्सीडाइजिंग दीज मैक्रोमोलिक्यूल्स. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी सोर्स. द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स. द स्टोरेज शुगर ग्लाइकोजन इज ब्रोकन डाउन टू ग्लूकोज व्हेन नीडेड. जब हमने वी टुक द कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो जो तो हमने इस्तेमाल कर लिए वो तो इस्तेमाल हो गए, बाकी जो बचेंगे that will be stored in the form of the storage form of glucose in human being is called the glycogen. ये हम पढ़ चुके हैं, क्लास में स्टार्च कहेंगे और यहाँ पे ग्लाइकोजन. ये ग्लाइकोजन स्टोर हो गई. when it is needed these glycogen will broken down into the glucose, glycogenolysis. ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड है at the time of the need, at the time when we need the energy glucose, the glycogen, there will be breakdown of the glycogen molecule and this process called the glycogenolysis. और फिर वो that is the glucose formation, or that glucose molecule can be is being used for the production of the energy by the process of the glycolysis. The 6 carbon sugar. Glucose is metabolized by glycolysis to pyruvate. जो एंड प्रोडक्ट है पायरोवेट है. पायरोवेट either can be further metabolized to the acetyl CoA which enters the Krebs cycle. पायरोवेट अगर तो अवेलेबल है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अवेलेबल है, Krebs cycle अवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो दैट विल बी मेटाबोलाइज टू एसिटाइल CoA में चली जाएगी और वो Krebs cycle में चले जाएगा. अगर नहीं है तो पायरोवेट अगेन इट विल कम और ये फिर लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं है. उसके बाद ये तो डायरेक्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन लिपिड ये भी हमारे एनर्जी सोर्स है. ये डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनेंगे, बल्कि ये जो प्रोसेस है एसिटाइल CoA उसमें एंटर हो जाएंगे. Storage fats, triglycerides are broken down into fatty acids and glycerol. Fatty acids are split into 2 carbon pieces, which is the acetyl CoA, which feed into the Krebs cycle. ये इस तरह ये फिर जो हमारा लिपिड्स है या फैट्स हमने खाई हुई है, that is being entered into the Krebs cycle for the production of the energy in the form of the acetyl CoA. उसके बाद प्रोटीन्स जो है ना मेजर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स थे, लेकिन उसके साथ फैट्स भी आ रही है और प्रोटीन्स भी आ रही है. दीज आर डिग्रेडेड इनटू अमाइनो एसिड और ये दीज अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिमूव कर देंगे और जब अमाइनो ग्रुप रिमूव कर तो उसमें देयर इज प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन और ये ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल दोनों में ये दे कुड बी एंटर, ये जो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. और जो नाइट्रोजन जो यहाँ से विच इज बीइंग रिलीज या जो जहाँ से बनी है दैट इज बीइंग एलिमिनेटेड और एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ द यूरिया साइकिल जिसको हम कहते हैं. देन द एनर्जी रिलीजिंग रिएक्शंस. अब देखिए क्या हमने पढ़ा, एटीपी बनी है, एटीपी फॉर्म, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, इट इज द सेलुलर वर्क. अब जो हमें हमारी बॉडी टू मेंटेन आवर बॉडी एट रेस्ट वी नीड नियर अबाउट 2000 कैलोरीज पर डे. तकरीबन 2000 कैलोरीज पर डे हमें रिक्वायर्ड है. एंड दिस इज कॉल्ड द बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो हम न्यूट्रिशन में पढ़ चुके हैं कि 200 कैलोरीज आर रिक्वायर्ड फॉर डेली वर्क. इसमें हमारे मसल्स ने भी काम करना है, रिलैक्स है, प्रोडक्शन है, फिर हमारे इवन थिंकिंग एट रेस्ट भी जो है ना ये हमें कैलोरी रिक्वायर्ड है. हम कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी वी आर यूजिंग कैलोरीज. और इसमें ये हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, 500 ग्राम जब शुगर है अगर सिर्फ वही खा लें तो वो आपको 2000 ग्राम पर 4 कैलोरीज पर ग्राम.
या फिर 222 ग्राम of fat they can also. ज्यादातर ये जो है ना, जो हमारी ये तो अमेरिकन लिखा है, लेकिन हमारा